Hello everyone, welcome to the Manuvlog classes in the session of daily news analysis. Today is 1st of May 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, guys, we are going to have the first one news, and this news is regarding the caste census. In the history of independent India, this is going to happen first time, and the cabinet, that is the government of India, has decided that in the next census they will be having the caste counting. It means now the form of the census, the officials of the census, they will have a form, and there will be a question, there will be a column that will ask you that what is your caste. There were different kind of questions in the previous census, but now this will include one another point, that will be the caste, that which caste do you belong. So this will be a revolutionary step in the independent India. So अब हम चलते हैं to have the more important key points regarding this news. Union Cabinet approved inclusion of caste enumeration. It means in the upcoming census. You can recall that recently, after 2011, there have been no census. I am not talking about only caste census, but there have been no census which is used to be conducted after every 10 years. But after 2011, there have been no census. First one, which was scheduled to be happen in 2021, but due to COVID-19, this was postponed. And after that, there was some decisions that it was postponed indefinitely. So still now, we don't have any census after 2011, and all the data for the policy formation, law formation, we are using, that is only the data from the 2011 census. So if we want to go just to the background of this census, then we will find that in 1931, this was the first time before the independence of India. This was the first time when the census included the column of caste. After that, there have been no census which asked about your caste, but now this will include a question which will ask about your caste. So in the post independence, censuses have only included scheduled caste and scheduled tribe. So in independent India, the question which were used to ask about you were that whether you belong to the SC community or ST community, but other caste were never asked. Means मैं इसको सिंपली कहूँ तो पहले जब सेंसस होता था तो आपसे पूछा जाता था कि आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं या नहीं, बस ये पूछा जाता था। लेकिन इस बार आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर कास्ट। ओके, सो including this column, there will be another column that will ask about your caste, and you will be going to write down or reply to the officer which will come from the census office. Census delay, that I have already covered. Statutory backing. Now the socio-economic caste census which happened in 2011 was not a part of the formal census. So it means after that there have been some official efforts by the government of India just to know that what is the status of any caste regarding the development, in the promotion, in the reservation in government job, educational institutions. But now there will be a statutory backing. That means there will be a proper law which will ask about the caste. And you know, there are two factors in the Indian politics. If you remove only just the two factors, one is religion and another is caste, then there will be various parties which will die completely. It means इंडिया में पॉलिटिक्स के दो ही पिलर्स हैं, और वो पिलर हैं, एक तो आपका हो गया रिलीजन और अनदर पिलर हो गया कास्ट. So there are so many parties in the Indian politics, and mostly on the local base, in the local areas, like state level parties or some local parties which are thriving based on only
the caste and religious factors. So I hope this caste census, this census will promote their interest. So there are many parties which are celebrating this decision by the cabinet of the government of India. So इस बार जो मोबाइल ऐप के थ्रू होगा, ये जो census होगा, this will be conducted throughout digitally. सो इस बार पहली बार ऐसा होगा. पॉलिटिकल एंगल की अगर हम बात करें तो बिहार की असेंबली की इलेक्शंस को इसमें काउंट किया जा रहा है, दैट बिकॉज the elections in the Bihar assembly are due to be happen in the later in this year and the starting of the next year. So this will be going to be a political angle as which is being raised by the opposition parties. So now we are going to have another news. This news is regarding the US intervention. It means this is talking about that US urges India and Pakistan that both countries should de-escalate their war-like situations. So this is the person who talked to the Mr. शहबाज शरीफ, है ना. उन्होंने इनके जो है ऑफिस में कॉल किया. सो यूएस ने कॉल किया है कि भाई आप कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन में ना जाएं. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही वॉर जैसी सिचुएशन को जो डी एस्केलेट करें और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट उन्होंने किया है. मींस गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दोनों के पास में इन्होंने इनमें आपस में जो है थोड़ा डिस्कशन हुआ है. और डिस्कशन जो हुआ है वो यूएस की तरफ से है कि इन कांटेक्ट विद द बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद. सो उन्होंने दोनों तरफ से कांटेक्ट किया है कि भाई आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि वॉर जैसी सिचुएशन आए और वॉर एस्केलेट हो जाए. तो दोनों ही कंट्रीज को ट्राई करना चाहिए कि वॉर से वो बच जाएं. पाकिस्तान हैव सम एक्यूजेशंस. सो पीएम शरीफ अक्यूज्ड इंडिया. जब इनकी बात हुई तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएसए की गवर्नमेंट से जाकर के रोए कि इंडिया देखो वॉर की धमकी दे रहा है और इंडिया जो है बहुत ही जल्दी आने वाले 36 आवर्स में या 48 आवर्स में या 24 आवर्स में इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर रखा है, तो मेरे हमको बचा लीजिए प्लीज प्लीज. तो इस तरह से कुछ पाकिस्तान का रिएक्शन रहा है यूएसए की गवर्नमेंट के साथ में. तो यूएसए ने इंडिया से अर्ज किया कि भाई टेंशन को थोड़ा कम कर लीजिए और एक्ट रिस्पॉन्सिबली. और मिलिट्री कंसर्न की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तरार क्लेम्ड द कंट्री हैड क्रेडिबल इंटेलिजेंस. ये जो वहां के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अताउल्ला तरार, इन्होंने कहा है कि हमारे पास में जो बहुत ही ज्यादा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि आने वाले 36 आवर्स में इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है. ठीक है. सो दैट वाज द सेकंड न्यूज रिगार्डिंग today's current affairs. India closes its airspace for Pakistani airlines. You can recall the previous step which were taken by the Pakistani government that all the flights which are coming from India and especially the companies who own and who are governed or controlled by the Indian persons. So it means if the company which have Indian stakeholding, all the airlines will be debarred. Means इंडिया की कोई भी एयरलाइंस, इंडिया की कोई भी एरोप्लेन वाली कंपनी पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी अपना एरोप्लेन नहीं ले जा पाएगी. ये डिसीजन पाकिस्तान की तरफ से पहले हो चुका था. सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट वी क्लोज आवर एयर स्पेस फॉर एनी पाकिस्तानी फ्लाइट. इट मींस कोई भी फ्लाइट, देखो पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम उन फ्लाइट्स को रोक रहे हैं जो इंडिया की कंपनीज की हैं, बट इंडिया ने अनाउंस किया है कि नाउ वी आर स्टॉपिंग प्रोहिबिटिंग कंप्लीट बैन दैट एनी फ्लाइट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द पाकिस्तानी एयर स्पेस. मींस पाकिस्तान के ऊपर से अगर कोई भी फ्लाइट इंडिया की तरफ आएगी, चाहे अब वो यूएसए की हो, वो चाइना की हो, ईरान की हो, हम किसी को नहीं आने देंगे अपनी तरफ. सो इट मींस अब देखो यूरोप से अगर कोई इंडिया आना चाहता है, यूरोप से अगर कोई इधर जाना चाहता है, बांग्लादेश जाना चाहता है, बिकॉज आजकल पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों की बड़ी दोस्ती पड़ रही है. ठीक है. पहले क्या होता था, पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं लाहौर से, कराची से, रावलपिंडी से, यहां से उड़ती थी सीधे बांग्लादेश में जाकर के पहुंच जाती थी. बट अब क्या होने वाला है, नाउ होगा क्या, अब पाकिस्तानी फ्लाइट्स को
ऐसे आना। देखो एयर स्पेस का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारा यहीं के ऊपर ऊपर का एयर स्पेस है, नहीं, यहाँ से आसपास का भी एयर स्पेस हमारा है, कई किलोमीटर तक, अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास तक, ठीक है। सो अब यहाँ से भी बाहर होकर के ही आपको जाना पड़ेगा बांग्लादेश में। ये लो, तो जो आप पहुंच जाते थे ना 2-3 घंटे में, आओ बेटा अब चल करके जाओ 5-6 घंटे। पेट्रोल आपका जो जो है एयर टरबाइन फ्यूल है वो बहुत सारा खर्च होगा, ठीक है। अब ये कंट्रीज भी पाकिस्तान से कहेंगे भाई तुमने क्यों पंगा ले लिया इंडिया से, हाँ, तुम तो खुद तो बोला हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, बोला तुम खुद से जो है टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हो। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कि पिछले 30 ईयर से पाकिस्तान लगातार टेरर को एक्सपोर्ट करता रहा है। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। सो इस रीजन में जो भी फ्लाइट, किसी भी फ्लाइट को अगर इस साइड में जाना होगा तो वो अब इंडिया के ऊपर से नहीं जाएगी, उनको अनदर रूट्स लेने पड़ेंगे। चाहे अब वो देखो कौन कौन परेशान होंगे, सारे गल्फ के कंट्रीज, सारे वेस्ट एशिया के कंट्रीज, यूरोप के कंट्रीज, ये तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, दुशानबे वगैरह, ये वाला सारा का सारा रीजन अब परेशान होगा। तो जिसको भी या चाइना या जापान या इस साइड में जाना होगा, अब वो ऐसे चक्कर लगा करके जाएंगे या फिर ऐसे ऊपर से आएंगे। अब पहुंचिए बेटा, है ना। सो पाकिस्तान को ये वाला रिप्लाई इंडिया की तरफ से मिल चुका है। और ये रिप्लाई किस वजह से मिला है आप जानते ही होंगे कि जो पहलगाम में अटैक हुआ उसकी वजह से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स जो कि रिटर्न हो चुके हैं, आ चुके हैं पृथ्वी पर, ऑन दी अर्थ। 6 मंथ्स का इनका मिशन था, तब से अभी लौट करके आए हैं। नाम है मिशन का सेंजो 19 और इसके क्रू जो थे इसमें ये 1, 2, 3 ये 3 लोग थे और तीनों के तीनों वापस आ चुके हैं अर्थ पर। क्या है इस मिशन की कुछ बेसिक पॉइंट्स which can appear in your examination in different forms. So let's know about all these points. 3 Chinese astronauts, Kai Zhuozhe, Song Lingdong, and Wang Haozhe. These are the 3 astronauts which has returned from space after 6 months journey. Okay, 6 months living in the space. और इनका अबोर्ड किस मिशन पे था, त्यांगडोंग स्पेस स्टेशन। यू नो कि अभी तक वर्ल्ड में 2 ही स्पेस स्टेशन है, एक तो है आपका नासा का जो कि यूरोपियन एजेंसी वगैरह सबके साथ मिलकर के है रसिया के साथ में, और चाइना ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना रखा है, दैट इज त्यांगडोंग स्पेस स्टेशन। इनका लैंडिंग कैप्सूल जो है कल जो है 30th ऑफ अप्रैल को आ गया मंगोलिया के आसपास वाले रीजन में, इसने जो है टच किया। ये गए थे कब 2024 के अक्टूबर में गए थे और कंप्लीट सक्सेस उन्होंने देखने को मिली। ये जिनवन जो उनकी चाइना की न्यूज एजेंसी है उसने ऐसा कहा है। अभी उनकी बहुत अच्छी हेल्थ है, हेल्थ वगैरह भी उनकी ठीक है और ये वापस आ चुके हैं। क्रू की अगर बैकग्राउंड की हम बात करें तो इनमें है ये जो काओ जूजे है, ये 48 ईयर्स के हैं, ठीक है, जो चाइना की एयरफोर्स के फाइटर जेट के पायलट ये रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सॉन्ग लिंगडोंग, ये फॉर्मर एयरफोर्स की पायलट रही हैं। वांग हाउजे है ना रहे हैं, और चाइना की ओनली विमेन स्पेस फ्लाइट इंजीनियर है ये, है ना। इससे पहले इनकी तरफ से कभी भी कोई विमेन उस स्पेस में, उस मिशन में जो है इंक्लूडेड नहीं रही है। सेंजो 20 मिशन लॉन्च, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेंजो 20 वाज लॉन्च्ड लास्ट वीक सेंडिंग अ न्यू ट्रायो ऑफ एस्ट्रोनॉट्स टू द त्यांगोंग स्पेस स्टेशन। एक नया मिशन है, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है, रिप्लेसिंग द सेंजो 19 क्रू। ये जो स्पेस था, इनका जो मिशन था, इसको अभी ये रिप्लेस कर देगा और ये भी ऊपर जाकर जो है स्पेस में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें कई सारे जो क्रू वगैरह होंगे उसके बारे में भी आने वाली टाइम में अपडेट्स आएंगी। मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं क्या है, कि एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं वो फिजिक्स में और लैब साइंसेस में, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को इंस्टॉल करेंगे स्पेस डैब्रिस से बचने के लिए, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा कचरा फैला हुआ है। प्लस फॉर द फर्स्ट टाइम द क्रू विल ब्रिंग planarians, aquatic platforms with regenerative abilities about the science research। वहां से कुछ चीजों को वो लेकर के आएंगे वापस। सो दिस विल बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन। चाइना का ब्रॉडर स्पेस एम्बिशंस की अगर बात करें तो चाइना इज इन्वेस्टिंग बिलियंस रुपीज इसमें स्पेस में कर रहा है, उसके अपने स्पेस ड्रीम है बहुत सारे। सैंडर क्रूड अब ये चाहते हैं कि मून पर और मार्स पर दोनों ही पर ये
ह्यूमन को लैंड करवाना चाहते हैं और स्पेशली ये कहते हैं कि हम मून पर हम क्या बना देंगे, आफ्टर 10 years मून पर भी अपना एक हम बेस बनाएंगे वहां पर, कि मून पर इनके जो रिसर्च के जो साइंटिस्ट हैं वो मून पर ठहर सके, रुक सके कुछ दिनों तक, ठीक है, और वहां की स्टडी कर सके। सो दिस विल बी गोइंग टू हैपन। और ह्यूमंस को ऑर्बिट में रखेंगे, लैंड रोबोटिक रोबोट्स ऑन द बोथ, बाकी फिर मार्स पर और मून पर अपने जो रोबोटिक जो इनके रोबोट्स होंगे उनको लैंड भी कराना है। तो मून पर ये अभी तक देखो, मून पर जितने भी मिशंस गए हैं वहां पर लैंड किए, वापस आ गए, लेकिन ये वहां पर एक बेस ही बना देना चाहते हैं कि मून पर रहेंगे हम चलो जा करके। सो दैट विल बी अ रिवॉल्यूशनरी अचीवमेंट फॉर होल वर्ल्ड एंड बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी, कि ह्यूमन की रेस ने क्या क्या अचीव कर लिया साइंस के दम पर। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे, और हम मिलेंगे नेक्स्ट डे विद अनदर टॉपिक्स। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।